Assalamu alaikum dear students, I am Mavish Malik. I am very happy to welcome you all to our computer book 6 class at STEM International. अभी तक हम लोगों ने चैप्टर 4 जो कि एल्गोरिथमिक थिंकिंग के ऊपर था, उसमें हमने ये देखा कि कौन से स्टेप्स फॉलो करके हम एल्गोरिथमिक थिंकिंग से अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं और साथ ही साथ उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम किस तरीके से कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 4 की एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग उसके फिलिंग द ब्लैंक्स देखेंगे, MCQs देखेंगे, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर्स देखेंगे, साथ ही साथ हम उसके प्रोजेक्ट्स और एक्टिविटीज़ को भी डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज सेक्शन ए, टिक द करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट 1, प्रॉब्लम सॉल्विंग मीन्स फाइंडिंग द सॉल्यूशन टू अ टास्क, ऑप्शन बी। स्टेटमेंट 2, द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इज आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, ऑप्शन सी। स्टेटमेंट 3, breaking a problem into smaller parts is called deconstruction, option B. Statement 4, a step-by-step set of instructions is called algorithm, option C. Statement 5, in sequential flow steps are performed one after another, option C. Statement 6, if-else is used in conditional flow, option B. Statement 7, repetitive flow is also called loop, option C. Statement 8, which is an example of simple problem adding two numbers, option C. Statement 9, which of the following is an example of conditional flow? Option D, checking whether a number is even or odd. Statement 10, which of the following is an example of abstraction in problem solving? Option B, ignoring unnecessary details and focusing on important information. Section B, write T for true and F for false in the given circles. Statement 1, complex problems usually need more time and steps, true. Statement 2, an algorithm must have start and end, true. Statement 3, selection is used when no decision is required, false. Statement 4, repetitive flow saves time by repeating instructions, true. Statement 5, deconstruction makes a big problem easier to solve, true. Section C, fill in the blanks. Statement 1, a dash is a finite set of clear steps to solve a problem, an algorithm. Statement 2, in dash flow steps are executed in the same order, sequential. Statement 3, in conditional flow the program uses dash statements, if-else. Statement 4, repeating steps again and again is called a loop or repetitive flow. Statement 5, identifying, defining and analyzing are steps of problem solving. Section D, answer the following question briefly. What is problem solving? Problem solving is the process of finding a solution to a given task or situation. Question number 2, write down the steps of problem solving. Problem solving includes 6 steps. Step 1, identifying the problem. Step 2, define the problem clearly. Step 3, analyze the problem. Step 4, plan a solution. Step 5, test the solution. Step 6, set the best solution. Question number 3, what is an algorithm? An algorithm is a finite sequence of clear instructions used to solve a problem or perform a task. Question number 4, what is deconstruction of a problem? Deconstruction means dividing a big problem into smaller subproblems. Question number 5, differentiate between simple and complex problems. Complex problems require more time and careful logical thinking. They may involve multiple steps and conditions. Question number 6, what is sequential flow? In sequential flow, steps are executed in the same order they are written. Each step is performed one after another. Question number 7, what is conditional flow? In conditional flow, steps are executed based on condition. If condition is true, one is taken, otherwise another action is performed. If-else statements are used to make decisions. What is repetitive flow? In repetitive flow, steps are repeated until condition is met. This type of flow is called loop. It saves time, reduces repetition of instruction. Section E, answer the following questions in detail. Question number 1, explain problem analysis and why it is essential. इसमें आपका प्रॉब्लम एनालिसिस वाला पूरा पैराग्राफ आएगा, जिसमें पहले बताया हुआ प्रॉब्लम एनालिसिस क्या होता है, प्रॉब्लम एनालिसिस क्यों इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम एनालिसिस हमें किस तरीके से हेल्प करता है और ये कौन से क्वेश्चंस को आंसर करता है, जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर एंड हाउ। तो पूरा पैराग्राफ आपका जो है वो इस क्वेश्चन के आंसर में यूटिलाइज होगा। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द बेनिफिट्स ऑफ एल्गोरिथमिक थिंकिंग। हमने एल्गोरिथमिक थिंकिंग में 6 पॉइंट्स डिस्कस किए थे, जिसमें डिकम्पोजिशन था, पैटर्न रिकॉग्निशन था, एब्स्ट्रैक्शन था, जनरलाइजेशन था, एल्गोरिथमिक डिजाइन था और कॉन्फिडेंस इन डिसीजन मेकिंग था। सारे पॉइंट्स आप लोगों ने डिटेल में इस आंसर में आंसर करना है, ताकि आप बेनिफिट्स ऑफ एल्गोरिथमिक थिंकिंग को डिटेल के अंदर एक्सप्लेन कर सकें। राइट एन एल्गोरिथम टू मेक अ ग्लास ऑफ मिल्क। अब जैसे हमने ब्रशिंग और टीथ के पूरे स्टेप्स लिखे थे, उसी तरीके से हमने मेकिंग अ ग्लास ऑफ मिल्क के ऊपर पूरे स्टेप्स लिखने। सबसे पहले हम एल्गोरिथम को स्टार्ट करते हैं, फिर आप क्या करोगे, पिक अ ग्लास। थर्ड क्या होगा, टेक अ मिल्क बॉटल। फोर्थ स्टेप क्या होगा, पोर मिल्क इनटू द ग्लास। और फिफ्थ स्टेप क्या होगा, स्टॉप।
क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन सीक्वेंशियल, कंडीशनल एंड रिपीटेटिव फ्लोज विद एग्जांपल। हमने इस चैप्टर के लास्ट में डिस्कस किया था सीक्वेंशियल को, कंडीशनल को, रिपीटेटिव फ्लोज को। आपने उन तीनों को एक्सप्लेन करना है और साथ में जिनकी एग्जांपल्स बुक में दी हुई है एज इट इज आपने वो इंक्लूड करनी है कि अगर आपके दिमाग में कोई और एग्जांपल है या कुछ और आपने एल्गोरिथम बनाया है तो उनकी एग्जांपल्स भी आप इनमें इंक्लूड कर सकते हो। एक्सपीरियंस बेस्ड क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, शेयर वन डेली लाइफ एग्जांपल यू सॉल्व यूजिंग स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग। अब आपने सोचना है कि अब आपने रिसेंटली कौन कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व किया और ऐसी कौन सी प्रॉब्लम थी जिसमें आपने स्टेप बाय स्टेप चीजों को लेकर के रीजनिंग के साथ सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 2, हैव यू एवर प्लान समथिंग लाइक पिकनिक और होमवर्क, राइट द स्टेप्स यू फॉलोड। अब अगर कभी आपने कोई चीज प्लान की है जैसे कि पिकनिक का या किसी ट्रिप पे जाना या फिर कोई होमवर्क वगैरह, तो उसके आप स्टेप्स लिखें कि आपने कैसे प्लान किया था कि पहले आप क्या करेंगे, फिर क्या होगा और फिर क्या होगा। इसमें ये पूरा आंसर करते हुए आप एल्गोरिथमिक थिंकिंग के तनाजुर में भी इसको आंसर कर सकते हैं। थिंक एंड आंसर, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू टेस्ट अ सॉल्यूशन बिफोर फाइनलाइजिंग इट। ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है कि पहले हम किसी सॉल्यूशन को टेस्ट करें और फिर उसको फाइनलाइज करें। हमने डिस्कस किया था डिटेल में कि जब हम अल्टरनेटिव्स देख रहे होते हैं या डिफरेंट सॉल्यूशंस के और डिफरेंट सॉल्यूशन की जो ऑप्शंस होती है हमारे पास, उसमें से हम हर सॉल्यूशन को टेस्ट करते हैं ताकि जो बेस्ट परफॉर्मिंग हो उसी को हम यूटिलाइज करें और जो सॉल्यूशन हम सिलेक्ट कर रहे हैं उसकी वजह से आपका बाकी एल्गोरिथम वगैरह डिस्टर्ब ना हो। कि आपने एक सोल्यूशन को सिलेक्ट किया है और उसके बेसिस के ऊपर अगर मल्टीपल और प्रॉब्लम्स इंक्रीज हो रहे हैं या फिर राइज कर रहे हैं तो वो सोल्यूशन ठीक नहीं होती। तो आपने वो सोल्यूशन देखना होता है जिससे कि आपका पहले वाला एल्गोरिथम खराब ना हो और वो जो है वो बेटर परफॉर्म करे और आपकी एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस भी इंक्रीज हो जाए उससे। हाउ डज एल्गोरिथमिक थिंकिंग हेल्प स्टूडेंट्स इन देयर स्टडीज एंड डेली लाइफ। अब आपने इसको सोचना है कि किस तरीके से अगर हम स्टेप बाय स्टेप चीजों को सॉल्व करते हैं, फिर आइडेंटिफाई करते हैं, फिर एनालाइज करते हैं, फिर सोल्यूशंस देखते हैं, फिर बेस्ट सेलेक्ट करते हैं, तो ये किस तरीके से आपकी स्टडीज में और डेली लाइफ में आपको हेल्प आउट कर सकता है। एक्टिविटी वर्क, राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड टोटल एंड एवरेज मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट्स। यहाँ पे पूरा आपने एल्गोरिथम बनाना है कि स्टार्ट क्या होगा, फिर आप किस तरीके से हर सब्जेक्ट के मार्क्स इनपुट लेंगे, फिर आप उसका सम डिफाइन करेंगे, सम डिफाइन करने के बाद फिर आप एवरेज के ऊपर जाएंगे कि कैसे आप लोगों ने उन सम को डिवाइड करना है नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स के साथ, और फिर एंड पे आपने आउटपुट को प्रिंट करवाना है और फिर आपने उसके बाद क्या करना है, स्टॉप कर देना है। तो ये आपने एल्गोरिथमिक थिंकिंग को यूज करते हुए इसके पूरे स्टेप्स लिखने हैं। Activity 2, identify input, process and output in the following task. Printing a document from a computer. अब अगर आप एक कंप्यूटर में से कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट कर रहे हैं तो उसका इनपुट क्या होगा, आउटपुट क्या होगा और प्रोसेस क्या होगा। ये तीनों चीजें आपने सोचनी है और उसको आंसर करना है। प्रोजेक्ट टाइम, प्रोजेक्ट 1, डेली लाइफ एल्गोरिथम प्रोजेक्ट। राइट एन एल्गोरिथम फॉर एनी वन एक्टिविटी। अब नीचे आपको 3 एक्टिविटीज दी हुई हैं, इनमें से किसी एक एक्टिविटी के ऊपर आपने एल्गोरिथम लिखना है, जैसे कि मेकिंग अ टी। इस तरह अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आंसर किया कि किस तरीके से आप मेकिंग अ ग्लास का एल्गोरिथम लिख सकते हैं, उसी तरीके से आपने मेकिंग अ टी का लिखना है, पैकिंग अ स्कूल बैग का लिखना है या फिर वॉशिंग हैंड्स का लिखना है। तो इन तीनों में से आप किसी भी एक चीज के ऊपर एल्गोरिथम लिख सकते हैं। प्रोजेक्ट 2, फ्लो टाइप्स प्रोजेक्ट। क्रिएट वन एग्जांपल ऑफ सीक्वेंशियल फ्लो, कंडीशनल फ्लो, रिपीटेटिव फ्लो। अब हमने देखा है कि एल्गोरिथम के अंदर हमारे पास 3 तरह के फ्लोज होते हैं, तो आपने हर एक फ्लो के ऊपर कोई ना कोई एक एग्जांपल लिखनी है। राइट इन एल्गोरिथम फॉर्म एंड डेकोरेट विद चार्ट पेपर। अब जब आप ये लिख रहे होंगे हर किसी के एग्जांपल, आपने मेक श्योर करना है कि आप उसको एक एल्गोरिथम थिंकिंग या एल्गोरिथम की फॉर्म के अंदर लिख रहे हैं कि पहले स्टार्ट होगा, फिर बाकी सारे प्रोसेस होंगे और एंड पे आप उसको स्टॉप कर देंगे। तो जी स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 4 की जो कि एल्गोरिथमिक थिंकिंग था उसकी एक्सरसाइज को डिस्कस किया। हमने बहुत डिटेल में देखा कि कौन सी आपकी एमसीक्यूज में ऑप्शन, फिलिंग दी ब्लैंक्स में, साथ में हमने आंसर्स, शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स को देखा। आई होप ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आई होंगी। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह।